नमस्ते, आप सभी लर्नेड व्यूअर्स का लाइव शो में स्वागत। यूट्यूब चैनल एनालिटिका आयुर्वेदा। मैं प्रोफेसर आनंद चौधरी आज एक नए मुद्दे के साथ। और आज का मुद्दा बहुत ही अच्छा है। इसके बारे में मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को, जो भी जागरूक होंगे, उनको यह जानकारी हो चुकी होगी। लेकिन फिर अपने उसी इश्यूज़ पे, क्योंकि आयुर्वेद के एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए व्हाट द NCISM इज़ डूइंग, दैट इज़ रियली वेरी अप्रिशिएबल। एंड दे हैव नोटिफाइड ऑन 14th December all the provisions of the National Teacher Eligibility Test. National Teacher Eligibility Test. इस टेस्ट में ये होगा कि सारे पोस्ट ग्रेजुएट जितने भी डिसिप्लिन्स हैं, जो भी टीचर्स जिनको कि पहली बार वो लोग टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं, इसका मतलब ये अलग शब्दों में कि जिनके पास अभी टीचर कोड नहीं है और वो किसी कॉलेज में पढ़ा नहीं रहे हैं, दे आर नॉट एंगेज्ड इन एनीवेयर इन एनी आयुर्वेदिक कॉलेज or any institution, they have to be appeared into this national teacher eligibility test if they are willing to come into this noble profession of the teaching, the academia, after the completion of their postgraduate qualification, right? And this is a really very right step. And this notification was done on the 14th December 2023, and it by the NCISM, and it was addressed to all the principals, deans, directors of all ASU colleges. And the language is here, the implementation of the National Teachers Eligibility Test NTET for postgraduates of each discipline of Indian System of Medicine as per Section 17 of the NCISM Act 2020. And sir, madam, in reference to the subject cited above, I am directed to inform you that the competent authority that has proved as per the provisions of this NTET, और ये इसमें अभी इसको डिटेल करता हूँ फर्दर एज नहीं पढ़ ही देता हूँ पूरा का पूरा। एज पर द प्रोविजंस मेंशन्ड above, NCISM has to conduct National Teachers Eligibility Test or NTET for those who want to enter teaching profession for the first time in Indian System of Medicine. NCISM has received a vetted copy of the relevant regulations from the Ministry of Law, and the said regulation will be notified soon. Second, further, as per the law, the implementation of the regulation starts immediately after notification of the regulation. Therefore, after notification of above and the regulation, every eligible person has to pass National Teacher Eligibility Test NTET before joining as teacher in ISM colleges. NCISM had already started process for preparing for the first NTET in 2024. The date and time for the NTET will be declared in due course of time in accordance with the above said provisions of the NCISM Act 2020. Please note, NTET is not applicable for the who have NCISM teachers code. Signature है BL Mehra, Secretary in charge NCISM, and it has been copies to the Secretary, Ministry of Ayush, the chairperson NCISM, the president Board of Ayurveda, the president Board of Unani Siddha Swagrippa, and the president Medical Assessment and the rating board for the ISM. Fine. And the guard file. So at the outset, we welcome it and we congratulate NCISM leadership, including the secretary, for the
provisions made here. After reading it, I have gone to the original NCISM Act. I gone through the section 17 of that, and there are the total 3 clauses. And it has been said, I may read that also, but I don't think there is a need. They have said that after this they will start the national teacher eligibility test, and the NCISM will conduct as per the provisions, and they said it will be implemented under 3 years of the implementation of the NCISM Act 2020. So they are very right. They have started the process. They notified under 3 years. तो 100% मार्क्स. फाइन. अब इसके आगे अब क्या है, तो वही जो बात आती है कि इसका उद्देश्य क्या है, वाई इट इज़ बीइंग डन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स. तो इसके ऑब्जेक्टिव्स वही हैं जो विज़न और मिशन में NCISM ने डिटेल किया है. टू maintain the high standards of the teaching of the ISM. And we belong to Ayurveda, so we will talk about the Ayurveda. Of course, this is related with the Siddha, Unani and the Sovaric part 2. Really, it's a very great. And in the sense, many CMEs we have attended, many of us as a resource person, or even as an organizer. When the different teachers of the different background of the any subject are being placed at one place in the CMEs in the number 30, and from all corners of the country, there is a big gap into the standard of academic standard of those teachers. Some are very highly qualified, highly knowledgeable, some are the mediocres, and there are also some who even don't remember their dissertation title. If I talk about the subject of the Rasas, I met with some teachers of the Rasas and the Bhaishaj Kalpana in different CMEs. They are teaching Rasas and Bhaishaj Kalpana, but they never prepared a copy book. They never know where if they have not prepared copy book, so how they will know why I am expecting that they should know how and where Salaka will be put. They have not seen any preparation of any bhasma. They are not very much acquainted with the different sodhan processes. But they are teachers because they have the qualification of the PG degree in the Rasas and the Bhaishaj Kalpana. So they are teachers. So certainly, if those people with yes, I can say in the diplomatic language, with those regard with those teachers, due regard with those teachers, if they are in the classroom, certainly they are not doing justice to the students. वो विद्यार्थियों के साथ बिल्कुल भी न्याय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको खुद का एक्सपोजर नहीं है. उनकी डिग्री कैसे हुई है उनके लिए मेरे पास अब कोई शब्द नहीं है, ना मैं कहना चाहता हूँ. शब्द हैं लेकिन मैं कहना नहीं चाहता. तो ठीक है, वो भी आज हमारे समकक्ष हैं, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और वो भी सबके साथ हैं, और उनको भी CME में इनवाइट किया गया है और वो क्वालिफाई किए हैं और पढ़ रहे हैं. लेकिन ये तो एक बस चावल का एक दाना है ना. मेजॉरिटी में भी ऐसे, मैं बिल्कुल कहना चाह रहा हूँ कि अभी ये रेशियो 80-20 का है, और मैं इसमें बिल्कुल नहीं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ कि कोई जो प्राइवेट कॉलेज में जो पढ़ा रहा है वो कहीं से इस कैटेगरी का है. नहीं, बिल्कुल नहीं. प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ाने वाला, एडेड कॉलेज में भी पढ़ाने वाला शिक्षक बहुत ही नॉलेजेबल है, समकक्ष है बहुत बड़ी भारी आयुर्वेद की मानक संस्थाओं के अध्यापकों के बराबर है. मगर मेजॉरिटी इसकी कम है. बहुत सारे इसमें 60-70% ऐसे लोग हैं जिनका एक्सपोजर है ही नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ही किसी ऐसे कॉलेज से उन्होंने PG डिग्री ली है जहाँ पर कोई सुविधा ही नहीं थी, खाली उनको उपाधि दे दी गई और उन्होंने ले ली. तो ऐसे तो रसशास्त्र को किनारे करता हूँ, आयुर्वेद का विकास नहीं होने वाला है. We are not going to be globalized if our students are not having knowledge at par which is required. And in this direction, this NTET is a very milestone and it will be the contributory. तो ठीक है, अब टेस्ट होगा, इसके साथ ही लोग आएंगे, टीचिंग प्रोफेशन में आएंगे, एक मिनिमम लेवल वो क्वालिफाई करेंगे. लेकिन इसके साथ
2 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण। संयोग की बात है कि सब चीज़ें कभी कभी ऐसे ही होती हैं। आज 26 दिसंबर को BHU में फाइनल ईयर का 23 मतलब कि 20 एडमिशन बैच का एग्ज़ामिनेशन आज से शुरू हुआ है। और एग्ज़ामिनेशन जब शुरू होता है, आज 1:30 बजे से है, अभी एग्ज़ाम चल रहा होगा जब मैं आपके सामने लाइव हूँ। तो यहाँ की कुछ अपने बहुत अच्छे ट्रेडिशंस हैं। जब पेपर बढ़ता है उसी समय HOD या फाइनल ईयर एग्ज़ामिनर जो होता है उस सब्जेक्ट का, वो सारे पेपर देखता है, चारों के चारों क्वेश्चन पेपर देखने जाता है कि क्योंकि बाहर से भी एग्ज़ामिनर्स होते हैं और उन्होंने भी क्वेश्चंस बनाया होता है, तो वो टैली करता है कि हाँ NCSM के सिलेबस से है क्या है, मतलब एक प्रक्रिया है, उसमें हम लोग जाते हैं। आज भी ठीक 1:30 बजे। और बहुत अच्छी बात है कि हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर प्रोफेसर SN संखवार साहब भी वहाँ तुरंत ठीक 1:30 बजे मौजूद थे। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू द डायरेक्टर सर। एंड हमारे डीन प्रोफेसर PK गोस्वामी भी वहाँ थे और भी HODs थे वहाँ पर और एग्ज़ामिनर्स थे। तो सब ने पेपर्स देखा और बच्चों से पूछा हर सब्जेक्ट स्पेशलिटीज़ में ऑल 16 कि भाई एनी डिफ़िकल्टी, एनी एक्सप्लेनेशन यू नीड, और ऑलमोस्ट सब ने कहा कि नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसा होता ही है। बट हम लोग जाते हैं। वहीं पर हमने डायरेक्टर साहब को ये बात कही कि सर एक बड़ी अच्छी खबर आपको देनी है कि हमारी NCSM तो NMC से एक स्टेप आगे चल रही है। तो बोले क्या? हमने कहा कि सर NCSM NTET शुरू करने जा रही है और नोटिफिकेशन उसका एक लेटर आ चुका है और डिटेल्स उसका आना है। तो बोले कि नहीं, हम वो KGMU से आए हैं और अभी उनको आया 6 महीना भी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि KGMU में भी जब बहुत सारे एप्लीकेशंस हो जाते हैं तो हम लोग रिटन टेस्ट करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स का, और फिर उसके बाद फिर इंटरव्यू हुआ, शॉर्ट लिस्टिंग हुई, तब होता है। हमने कहा कि सर ये मैं एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे कमीशन से बात कर रहे हैं कि NCISM कमीशन इसको बनाने जा रहा है। और कोई भी टीचर बनेगा तो जैसे CSIR नेट लेती है और JRF होता है, हर डिसिप्लिन का, हर सब्जेक्ट का होता है कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी में टीचर बनना है तो आपको नेट क्वालिफाई करना होता है। ये उस पैटर्न पर है। तो बोलते हैं यार गुड, वेरी गुड। हाँ, यहीं पर एक हमारे कलीग हैं और मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, हमारे सीनियर भी हैं, प्रोफेसर मनोज साला के HOD हैं। तो उन्होंने कहा कि सर एक ही समस्या है कि, और इसको NCSM के लोग ज़रूर सुनेंगे और लोग भी सुनेंगे, कि आयुर्वेद में जितने भी टेस्ट होते हैं, जो भी एंट्रेंस टेस्ट होता है, वहाँ पर हमारे डीन साहब ने भी नाम लिया सबसे बड़े वाले PG टेस्ट का। कि पहले एक बात करता हूँ कि प्रोफेसर मनोज बोले कि देखिए सब मेमोरी बेस्ड MCQs पूछे जाते हैं, जबकि वो रेशनलाइजेशन बेस्ड होने चाहिए। तो हमने कहा कि हाँ था, लेकिन ये पैटर्न चेंज हो रहा है। तो हमारे डीन साहब भी, प्रोफेसर PK गोस्वामी जी भी बोले कि अभी हर साल मॉड्यूल चेंज हो जा रहा है, PG टेस्ट का भी, और कोई सेट पैरामीटर नहीं आ पा रहा है IPGT का, तो उससे स्क्रूटिनी में भी थोड़ी सी दिक्कत, स्टैंडर्ड में हर साल अलग अलग स्टैंडर्ड के लोग आ जा रहे हैं। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखना होगा। आयुर्वेद के नीति नियंताओं को बात पहुंचाना मेरा कर्तव्य है, मैं पहुंचा रहा हूं कि AIPGT में भी लगातार एक्सपेरिमेंटेशंस चल रहे हैं नोडल एजेंसी NTA के द्वारा। अब NTA भी किसी न किसी आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन के कोलैबोरेशन से ही काम करती है। कोई भी टेस्ट होता है NTA उस फील्ड की एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के कोलैबोरेशन में काम करती है, और वो जो उसका नोडल इंस्टीट्यूट है उस विधा का, उस डिसिप्लिन का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो NTA को किस तरीके से क्वेश्चंस के मॉडलिंग में कोऑपरेट और कोलैबोरेट करता है। यहाँ भी झकझाहिर है कि कौन सी संस्था NTA को कोलैबोरेट कर रही है और कैसे क्या हो रहा है। लेकिन एक बात ये सही आई है कि यहाँ पर कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट्स लगातार चल रहे हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स के बीच में एक वो क्राइटेरिया नहीं आ पा रही है, एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया, जैसे कि CSC में है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में है, कि वो पहले से ही डिक्लेयर करते हैं कि हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न इस साल का ये होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली पूरा देश तैयारी करता है। तो AIPGT को भी अपना ऑल ऑफ सडन चेंज करने के पहले पैटर्न, एक नोटिफिकेशन आना चाहिए, व्हाट आई सबमिट, व्हाट आई रिक्वेस्ट। इन द सेम वे ये जो NCISM NTET करने जा रहा है, उसका एक वो पैटर्न ज़रूर नोटिफाई करे कि उसका
क्या होगा, ओरिएंटेशन क्या होगा क्वेश्चन पेपर का, कितना मेमोरी बेस्ड होगा, कितना रेशनैलिटी वाला होगा, कितना रीजनिंग होगा, कितना एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। जैसा कि अभी मुझे तारीफ़ करने का इच्छा होती है तो मैं करता हूँ, और सजेशन देने का मन होता है वो भी करता हूँ। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डीम्ड यूनिवर्सिटी जयपुर ने अभी जो AP के एग्जामिनेशंस किए, इंटरव्यू भी अभी 13 दिसंबर को हुआ, तो उन्होंने एक पैटर्न फॉलो किया और वो पैटर्न रियली अप्रिशिएबल है। तो अगर हमें एक अच्छा क्रीम अपने टीचिंग लाइन में लाना है तो NTET भी उसी तरीके पे जानी चाहिए। और मुझे ये सजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं समझता हूँ कि जो लीडरशिप है NCISM की वो इन चीज़ों को केयर कर रही होगी और वो लोग बहुत अच्छे। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट सिर्फ इतना है कि एक मॉडल क्वेश्चन पेपर NTET कंडक्ट करने के पहले NCISM अपने वेबसाइट पे ज़रूर दे दे कि दिस इज़ द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड एज NTET 2024। तो इससे क्या होगा कि एक फेयर अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी। तो ये एक हमारा रिक्वेस्ट है कि मॉडल क्वेश्चन पेपर NCISM NTET के पहले अपलोड कर दे। दूसरी सजेशन हमारा ये है कि ये खाली प्रिंसिपल्स को लिख देने से काम नहीं चलेगा और डीन डायरेक्टर्स को लिख देने से काम नहीं चलेगा। मेरा इशारा बिल्कुल स्पष्ट है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जब नोटिफाई करेगी, इसको कॉग्निजेंस में लेते हुए BHU को, या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष तो पार्टी है आपका, लेकिन उसको भी करना पड़ेगा कि जो उसके नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ITRA से लेकर के NIA DU चाहे AIA चाहे किसी भी यूनानी सिद्धा शोवारिकपा सब, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से जैसे कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कि इसका EC एकेडमिक काउंसिल से होता हुआ एग्जीक्यूटिव काउंसिल तक जब ये एक पैरामीटर ला देगा कि नहीं आपको NTET क्वालिफाई कैंडिडेट ही अपने यहाँ शॉर्ट लिस्ट करने हैं, चाहे आप कोई भी मेरिट बनाइए अपनी यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी में, मगर गाइडलाइन तो अब यही है कि NCISM के ही RR पर बनेगा। और जब NCISM अपने RR में लिख देगी कि NTET क्वालिफाइड ही चाहिए तो वो भी अमेंडमेंट आ जाना चाहिए, अर्लीस्ट आना चाहिए। जैसे ही ये लॉ का नोटिफिकेशन आया उसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया जाना चाहिए। और अलग से भी, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगा कि CCRS ने जब अपना PhD वाला नोटिफिकेशन किया था आज से 3-4 साल पहले, तो UGC ने उसको इक्विवेलेंसी दी थी कि दे विल बी रेट एग्जम्प्टेड। एक जो कोई भी टेस्ट होगा अगर वो JRF के इक्विवेलेंट मानी जाएगी और उसके वो जो कैंडिडेट CCRS नेट जो क्वालिफाई किए हैं उनको PhD में वेटेज मिलेगा। तो इन द सेम वे NCISM निश्चित रूप से इसको ध्यान में लेगी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ से जो कॉलेजेस गवर्न होते हैं या स्टेट डायरेक्टरेट से जो कॉलेजेस, ये अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। थोड़ा सा दिमाग चल रहा है तो बोल रहा हूँ। अब यूनिवर्सिटी स्टेट की है, ठीक है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय किसी का अपॉइंटमेंट कर रहा है, या आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय सॉरी कहीं कहीं तो विश्वविद्यालय अपॉइंटमेंट करता है जब कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉलेज है तो, मगर कहीं कहीं विश्वविद्यालय सिर्फ परीक्षा लेता है और अपॉइंटमेंट कमीशन करता है। तो जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन हैं स्टेट्स के, उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना होगा कि जब वो शॉर्ट लिस्टिंग करें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करे, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग करे, उड़ीसा लोक सेवा आयोग करे, तो वो अपनी शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया में टीचिंग पोस्ट के लिए NTET को बार लगाए। तो इतनी तैयारी करनी होगी NCISM को, और NCISM अवश्य कर रही होगी। और ये बातें सभी शिक्षकों को जाननी चाहिए कि उनके राज्य में ये लग जाए। आपको भी जागरूक होना होगा कि अपने लोक सेवा आयोग को आप सूचित करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग सूचित नहीं हो रहते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया था, अभी उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी देहरादून के वाइस चांसलर का नोटिफिकेशन हुआ, कॉपी गई CCIM को, जो कि 3 साल से नहीं है। तो ऐसा होता है, ये कोई नई बात नहीं है। तो लेकिन अब अभ्यर्थियों को भी जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं जिन्होंने NTET क्वालिफाई किया है, वो लोग अपने कमीशन को अपने आप भी बताएं, सुओ मोटो बताएं, NCISM के नोटिफिकेशन का ही इंतज़ार ना करें, जिससे कि उनकी
टैलेंट को रिकॉग्नाइज करे कमीशन, आई मीन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑफ कोर्स द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. For example, if they are recruiting for the Tibia College, in the same way, once again I congratulate NCISM. I am very much expressing my gratitude to the NCISM for this very much game changer, yes, game changer, milestone, pioneer step for the upgradation of the Ayurvedic education. साथ में बस ये भी थोड़ा सा हो जाए कि मॉडल टेस्ट पेपर आ जाए इम्तहान के पहले NCISM के वेबसाइट पे, और जैसे ये लॉ आता है तो वो सबके लिए इसको उसमें प्रोविज़न हो कि इसको सारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, सारी रिक्रूटिंग यूनिवर्सिटीज़ जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉलेज हैं ये ISM के, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, सब अपने यहाँ ISM कॉलेजेस का जो अगर रिक्रूटमेंट करें तो इस बार को फॉलो करें, फर्स्ट क्राइटेरिया. पुनः सबको बधाई देते हुए और सारे नए टीचर्स को जो आने वाले हैं फील्ड में उनको शुभकामनाएं, आपका अभिवादन, अभिनंदन. फिर एक नए मुद्दे के साथ थर्सडे को मिलते हैं. आजकल BHU में छुट्टी है और आवाज़ से ही आपको संबोधित करने का भी आनंद उठा रहे हैं. फिर मिलते हैं. नमस्कार.